prose book. I have already told you about first and second lesson, and now it is the turn of the third lesson. So let us begin it now. The name of this lesson is The Secret of Health, Success and Power, written by James Allen, an American prominent writer. In this essay, the writer James Allen is telling us the secret of health, success and power. He tells us about it that the secret of health is a pure heart and well ordered mind, and pure heart is the secret of our health. And then he says that the secret of success is a strong faith and a wisely directed purpose. A strong will is the secret of power. The writer James Allen says that to gain good health, power, and success, we should have to follow certain rules and develop some qualities. We should have pure heart and balance of mind, then we will gain good health. We should have firm faith and wisely directed or decided purpose. Only then we will get higher success in our life. We should control our mind and our desires also. This is the real secret of power. According to the writer, illness and disease is the result of our own errors or our own sin. Lack of strong faith and purity may be the cause of disease, failure, and disaster. So, we should keep our mind in order to enjoy good and perfect health. In other words, if we want to secure our health, if we want to enjoy our health, we should keep our mind in balance. There should be harmony in our thoughts, because disease comes to those persons who attract it, and disease runs away from those persons who have positive ideas, who have good ideas, and no ill will to anyone. It is necessary for, writer says that it is very necessary, it is very compulsory for complete physical health, and we should be free from anger, worry, jealousy, hatred, greed, or any kind of tension. There should be always careful of our these diseases. In other words, you can say that these are the seeds of disease. Anger, worry, jealousy, hatred, and any kind of tension. All these are the seeds of disease, and so we should keep ourselves away from these things. We should be very careful about of them. If we want to physical health, then we should be free from anger, worry, jealousy, hatred, greed, or any kind of tension. These are the seeds of disease. They are very dangerous. A bad drain or an infected house is not so dangerous as these things are. And so the writer says again that true health and true success go together. So we should have firm faith in God, firm faith in the rules of universe, faith in our capacity, faith in our ability, and faith in the power of doing that work. We should always follow the voice of our conscience. The voice of our soul is the best guide in life. So we should believe that good actions bear good fruits, and bad actions brings
bad results. This is the rule of universe. We should have a single aim in our life if we want to achieve it. And we should never divert ourselves from our goal of life. It is well said that double-minded man is not able to achieve anything in his life. He cannot achieve the aim of his life if he is double-minded person. So the writer says that we should choose the goal of our life wisely and very good manner. It is well said that double-minded man is not able to achieve his aim of life. The writer says that we should choose the goal of our life wisely and we should concentrate our whole mind upon it and put our whole energy into it. It means we should try our best to do the work. We should not worry at all about our future success or failure. Certainly, success will come. At last, the writer says that passion is not power. It is the abuse of power. It is the dispersion of power. Strong emotions, anger, enthusiasm, and strong desires are called passions. A man inspired by passions cannot accomplish his work successfully. Passion is the wrong use of power. Passion is like a furious storm that beats fiercely and wildly upon the rock which is strongly protected and immovable. Power is compared to that very rock by the writer here. It is not affected at all by the angry storm. The rock is silent and fixed in spite of the fierce attack of the storm. So the man who does his work with full faith in his power is sure to get success in his life. He will be more and more successfully able to control the evil influences of passions. In the end, the writer tells us again that the secret of health is a pure heart and a well planned mind. The secret of success is the strong faith and a wise aim of life. The secret of power is to keep under control the dark horse of desire with willpowers. So, it is all about this lesson, and now I want to tell you the substance of this lesson in Hindi also. The writer जेम्स एलिन अमेरिका के एक एमिनेंट राइटर हैं। वे इस लेसन में हमें सीक्रेट बताना चाहते। सीक्रेट किस चीज की? हेल्थ, सक्सेस एंड पावर की क्या सीक्रेट है, क्या रहस्य है, अर्थात हम जीवन में कैसे सफलता पा सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, या हाँ अपनी पावर को किस तरीके से यूज करें, अर्थात पावर का सीक्रेट क्या है। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ वी शुड डू समथिंग दैट इज टोल्ड बाय द राइटर टू अस, अर्थात राइटर जो कुछ भी हमें बता रहा है इस लेसन में सीक्रेट के बारे में, वो सीक्रेट एक एक करके मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। राइटर कहना चाहता है कि यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ रूल्स, कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। हमें यूनिवर्स के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। स्वस्थ वही व्यक्ति रह सकता है जिसके आइडियाज प्योर और पॉजिटिव होंगे, अर्थात बिल्कुल शुद्ध जिसके विचार हों, पवित्र जिसके विचार हों, कभी दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आती हो, वही व्यक्ति सदैव सुखी रह सकते हैं। लेखक कहता है कि यदि हम
हम क्या, कोई भी व्यक्ति यदि चिंता में रहता है या घृणा करता है किसी से, या किसी प्रकार की ग्रीड मन में रखता है, लालच लाता है, या अन्य जो चीजें हो सकती है माइंड के बैलेंस को बिगाड़ने वाली किसी भी प्रकार का जो टेंशन है, यदि हम उसे अपने माइंड में हर समय रखेंगे तो हम जीवन में कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकते। क्योंकि ये जो चीजें हैं जो राइटर बता रहा है, वरी, एंगर, जेलसी, हेट्रेड एंड एनी काइंड ऑफ टेंशन और विच डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ आवर माइंड, हमारे माइंड के बैलेंस को जो चीजें बिगाड़ देती हैं, अर्थात संतुलन को बिगाड़ देती हैं, दिमाग में ऐसे ऐसे जो टेंशन व्यक्ति जो रखता है या किसी प्रकार की घृणा, जेलसी जो भी रखता है, ये चीजें यदि दिमाग में रहेंगी और फिर हम ये सोचें कि हम स्वस्थ रहें, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू बी हेल्दी इन आवर लाइफ इफ वी हैव jealousy, anger, hatred, worry, greed, etc. in our mind, because these are the disease, seeds of disease. ये बीमारी के बीज हैं। देखिए, जिस चीज के बीज बोए जाते हैं फसल उसी चीज की उगती है। यदि हम माइंड में हर समय कंटिन्यूसली बीमारी के बीज बोते रहेंगे, कौन से बीमारी के बीज, एंगर, जेलसी, हेट्रेड, ग्रीड एक्सेट्रा, तो क्या होगा, बीमारी पैदा होगी, अर्थात हम स्वस्थ नहीं रह सकते, हम बीमार रहेंगे। और यदि हम इन चीजों से दूर रहें, यदि हम अपने आप को इनसे अलग रखें, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, या कहिए हम एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। राइटर कहता है कि यदि स्वस्थ रहना है, सही जीवन का आनंद लेना है, तो माइंड फ्री, टेंशन फ्री रह के काम करिए, यानी किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। टेंशन एक तरीके से क्या है, कैंसर है। टेंशन इज द कॉज ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ डिसीजेस, बहुत सारी बीमारियों का एक तरीके से मुख्य कारण होता है टेंशन। इसका कोई इलाज नहीं है। हमें पॉजिटिव थिंकिंग और प्योर आइडियाज यदि हमारे रहेंगे, तो हमारे अंदर हर समय एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा पदार्थ बहता रहेगा जो जीवनदायिनी पदार्थ होता है, जो बीमारियों को हमसे सदैव दूर रखेगा। राइटर कहता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे अपने आप को इन चीजों से बिल्कुल अलग रखते हैं, दूर रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मतलब एंगर, वरी, जेलसी, हेट्रेड या ग्रीड जो भी है, जिन्हें हम बीमारी के बीज कह रहे हैं, सीड्स ऑफ डिसीज कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छी तरह मालूम होता है कि इतना तो खतरनाक कोई इन्फेक्टेड हाउसेस भी नहीं होता है, इतना खतरनाक कोई गंदी नाली भी नहीं होती है जितने की ये हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इनसे हम सदैव अपने आप को अलग रखता है ताकि वो स्वस्थ रह सके। दूसरी बात, सफलता के बारे में कहता है कि सफलता और अच्छा स्वास्थ्य साथ साथ चलते हैं। यदि हम स्वस्थ हैं तो सफलता भी हमको मिलेगी। सफल होने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग और फर्म फेथ रखना होगा, दृढ़ विश्वास रखना होगा। विश्वास उस भगवान में, उस क्रिएटर में जिसने हमको बनाया है। हमें विश्वास रखना है किसमें, ब्रह्मांड के जितने भी नियम हैं, यूनिवर्स के जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं प्रकृति के, उनको हमें एक तरीके से विश्वास रखना है उनमें, अपनी एबिलिटी में, अपनी योग्यता में, अपनी क्षमता में, और जिस काम को हम कर रहे हैं उस कार्य को करने की पावर में भी हमें विश्वास रखना है। तो हम जब पूर्ण विश्वास रखेंगे, दृढ़ विश्वास के साथ किसी कार्य को करेंगे और उसमें पूरी पावर के साथ करेंगे, अर्थात जितनी हमारी एनर्जी है उस एनर्जी को पूरा उस कार्य में लगाएंगे और होल कंसंट्रेट करेंगे उसी काम पर, अन्य कार्यों से अलग रख के केवल फोकस उसी पर रखना है, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। या ये कहिए कि जब कोई काम कर रहा है तो सिंगल माइंडेड होकर के करना है। यदि सिंगल माइंड होकर रखेंगे कार्य को अपने सामने, जिस कार्य को हम करेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। डबल माइंडेड आदमी कभी भी सफलता नहीं पा सकता। तो ये निश्चित है देखिए कि यदि हम पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं, होल हार्टेड के साथ कार्य कर रहे हैं, और यदि पूरी एनर्जी के साथ कार्य कर रहे हैं, तो फिर हमें भविष्य की
असफलता और सफलता के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये निश्चित मानिए सफलता ही आएगी, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई किसी भी प्रकार की दो राय नहीं है। निश्चित रूप से सफलता ही मिलती है, क्योंकि ये एक नियम है देखिए प्रकृति का, या ये कहिए कि यह बहुत अच्छी तरीके से कहा जाता है कि अच्छे कार्यों का जो परिणाम होता है वो हमेशा अच्छा ही होता है, और बुरे परिणाम, बुरे जो कार्य होते हैं उनका जो रिजल्ट है, उनका जो परिणाम है वो सदैव बुरा ही होता है। अब सीक्रेट ऑफ पावर की बात करता है कि यदि हमें विल पावर को बनाए रखना, देखिए विल पावर, जो स्ट्रांग जो विल पावर होती है, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है, उसका होना बहुत ही आवश्यक है। ताकत से ही हर काम नहीं होता है। पैशन में रह के कोई काम किया जाता है, भावनाओं में बह के यदि कोई काम किया जाता है तो वो कार्य कभी सही और पूर्ण नहीं होता है। हमको जब कोई कार्य करना है तो अपनी विल पावर को स्ट्रांगली प्रयोग करना है, और कंट्रोल मतलब प्रयोग करने से मतलब कि उसको हमें इस तरीके से कार्य प्रयोग करना है जो कि सारी नेगेटिविटी या जो भी जो बैड या इविल इन्फ्लुएंसेस जो पैशंस के होते हैं वो कंट्रोल हो सकें। यानी हमारा जो इच्छा रूपी जो घोड़ा है, जो बहुत दौड़ता है, दौड़ता ही रहता है, उसको लगाम लगाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? विल पावर की आवश्यकता है। तो राइटर अंत में कहता है फिर से कि अच्छे स्वास्थ्य का जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, जो राज है, वो क्या है? प्योर हार्ट और वेल प्लान्ड माइंड। जिसका माइंड बिल्कुल संतुलित होगा, जिसकी हार्ट यानी हृदय पवित्र होगा, या कहिए जिसकी विचार एकदम शुद्ध होंगे और सकारात्मक होंगे, तो वह व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। और सफलता के बारे में कि स्ट्रांग फेथ का होना बहुत जरूरी है, दृढ़ विश्वास का होना बहुत जरूरी है, और जो हमारा जो लाइफ का जो एम है, उद्देश्य है, वो वाइजली डिसाइडेड होना चाहिए, तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। और अंत में पावर के बारे में कहा है उसने कि पावर की जो रियल सीक्रेट है वो है क्या? कि जो हमारा जो इच्छा रूपी जो घोड़ा है उसे अंडर कंट्रोल करने के लिए अपनी जो विल पावर है उसका प्रयोग करना है। अर्थात व्यक्ति को यदि जीवन में सफल होना है, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेना है, अपनी पावर को बनाए रखना है, तो उसे अपने माइंड से नेगेटिविटी को दूर रखना है, पॉजिटिविटी को अपने पास लाना है। हर समय उसे पॉजिटिव आइडियाज ही रहने चाहिए, हारमोनियस थिंकिंग होनी चाहिए उसकी, ताकि हमारे जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो दूसरों को भी आनंद दें और खुद भी आनंदित हों। यानी कभी ऐसे हमारे आइडियाज नहीं होना चाहिए जिससे दूसरों को दुख मिले या किसी को कोई परेशानी हो। तो जो व्यक्ति ये चीज़ें अपने माइंड में रखेंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, जिनकी प्योर आइडियाज होंगे, जिसका प्योर हार्ट होगा, निश्चित रूप से वो स्वस्थ भी रहेंगे, सफलता भी पाएंगे, और उनकी जो विल पावर है वो और अधिक से अधिक बढ़ती ही रहेगी। So this is all about this lesson. That's all. Thank you.